Okay, in this class we are going to discuss again questions and doubts of human health and disease. Okay, in human health and disease, we will discuss a topic monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies human health and disease में. What are monoclonal antibodies? Single type of antibodies. They are single specific type of antibodies. Okay, how monoclonal antibodies are produced? What is the process in monoclonal antibody production? So you can take down meaning. Monoclonal antibodies are single type of antibodies. Single type के होते हैं antibodies ये. How they are produced? First of all, antigen, one particular antigen is injected into the mice body. Antigen is injected into the mice body, then mice body produces B lymphocyte. Okay, mice body produces B lymphocyte. Another side, a carcinogen is taken. What is carcinogen? Cancer causing agent. This carcinogen is given to mice and mice develop myeloma cell. What is myeloma cell? Myeloma cells का मतलब है cancerous cells. Cancerous cells. Till now, everything clear? How to produce monoclonal antibodies? First of all, antigen injected into the body of mice, and then the mice get stimulated, producing B lymphocytes. Another side, cancer causing agent is given to another mice, and that second mice will produce cancer cells or myeloma cells. Now both B lymphocyte and myeloma cell are fused. क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे. फ्यूज करने के लिए क्या यूज करना हम? फ्यूसाजन. What is fusagen? The chemical which fuses two different cells. Fusagen बोलेंगे. What is the fusagen? PEG. Polyethylene glycol बोलते हैं इसको. Polyethylene glycol. What is the use of this? फ्यूसाजन है. अब जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे, बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो यहां पर जो फ्यूजन प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट यू कॉल दिस फ्यूजन प्रोडक्ट? दिस फ्यूजन प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा. क्या बोलना चाहिए? हाइब्रिडोमा. व्हाट इज हाइब्रिडोमा? बोलते यू शुड नो द मीनिंग. What is hybridoma? It is the fusion product of B lymphocyte and myeloma cell. ये दोनों का अगर फ्यूजन हो जाएगा तो बनेगा hybridoma. And this hybridoma has got the properties of both. Hybridoma में दोनों के properties रहेंगे. Hybridoma produces antibodies like B lymphocyte. Hybridoma divide like myeloma cell, fast dividing, rapidly dividing myeloma cells, and they are producing antibodies also. That means ये hybridoma क्या करेंगे? एक hybridoma से दो बन जाएंगे. Very fast dividing, right? How they are dividing so fast? Because of myeloma cell. बिल्कुल सही. myeloma cell की वजह से divide हो रहे हैं fast, और इनसे बनेंगे एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई शेप. लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज. लॉट्स ऑफ एंटीबॉडीज. वाई शेप. सो दिस इज व्हाट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन. अब ये वर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैंसर के डायग्नोसिस में एनसीईआरटी में है. जस्ट एक वर्ड है.
In cancer diagnosis we can use monoclonal antibodies. तो it is your responsibility कि monoclonal antibody क्या है आपको पढ़ लेना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड है, पढ़ना पड़ेगा आपको. करेक्ट है. सो कैंसर डायग्नोसिस में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा, देखिए कैंसर डायग्नोसिस में monoclonal antibodies can also be used for cancer diagnosis and molecular biology techniques can also be used. और molecular biology techniques कौन से आते हैं जो कैंसर डायग्नोसिस करते हैं? probes क्या करते हैं बताइए? probes find out whether a person is susceptible for cancer or not. ससेप्टिबल मतलब जो ज्यादा चांसेस हैं कैंसर होने के, दैट कैन बी डिटेक्टेड. ओके, एनी क्वेश्चन हियर? सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पेग के बारे में. व्हाट इज अ फ्यूसाजन बोले तो आप बोलना चाहिए पेग है फ्यूसाजन. हाइब्रिडोमा भी पूछ सकता है. हाइब्रिडोमा इज इक्वल टू बी लिम्फोसाइट प्लस माइलोमा सेल. पेग मतलब फ्यूसाजन है. फ्यूसाजन इट इज यूज फॉर फ्यूजिंग टू डिफरेंट सेल्स कैन बी फ्यूज्ड. चलिए और कोई कुछ डाउट है एनसीईआरटी में? व्हाट इज द यूज ऑफ हाइब्रिडोमा? हाइब्रिडोमा डिवाइड लाइक माइलोमा सेल and produces antibody like B lymphocyte. That means it can produce antibody and it can divide like cancer cell very fast. देखिए आपको और कहां पर डाउट है, एक बार एनसीईआरटी में जाके देखिए. और अब ऐसा होना चाहिए कि अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से विद इन द एनसीईआरटी एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए. एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी वेरी केयरफुल, है ना. सीरीहॉसिस पूछ रहे हैं बच्चे. सीरीहॉसिस मतलब इट इज ए लीवर कैंसर. एक पर्सन क्या है, अल्कोहल लेता है. अल्कोहल लेना इनटेक हो गया उसका, अल्कोहल इनटेक. वेयर अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल ऑकर. अच्छा, अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन कहां होता है बॉडी में? अल्कोहल गेट अब्जॉर्ब्ड इन स्टमक. अल्कोहल स्टमक में ही अब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन तक भी नहीं पहुंचता. ये स्टमक में अब्जॉर्ब होगा, बट मेटाबोलाइज्ड कहां होता है इसका? मेटाबोलाइज्ड इन लीवर में मेटाबोलाइज होता है, मतलब लीवर में इसका ब्रेकडाउन होगा. एंड इन लीवर अल्कोहल ब्रेकडाउन इनटू एसिटाल्डिहाइड. लीवर के अंदर क्या होगा? अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा एंड देन एसिटाल्डिहाइड कॉजेस लीवर कैंसर. ठीक है. ये हो गया सीरियोसिस. लीवर कैंसर को बोल रहे हैं सीरियोसिस. और कुछ डाउट आ गए हैं यहां पर. देखिए व्हाट इज हाशिमोटोस डिसीज दिए हैं, वेंडलिज्म दिए हुए हैं. ओके, वेंडलिज्म किसको बोलते हैं? मैं आपको नोट्स में जो है बताया हूं सिम्टम्स ऑफ ड्रग एडिक्टेड पर्सन. जो ड्रग एडिक्टेड रहते हैं, मॉर्फिन लेने वाले, स्मैक या हशीश, चरस, गांजा जो लेते हैं,
उनके कुछ सिम्टम दिया हुआ है आपके बुक में. व्हाट आर दो सिम्टम्स? नंबर 1, दे आर हैविंग रिबेलियस बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर, है ना. रेकलेस बिहेवियर मतलब एकदम केयरलेस रहते हैं ये लोग, ड्रग एडिक्टेड पर्संस. और वेंडलिज्म होता है उनमें. व्हाट इज वेंडलिज्म? लाइक डिस्ट्रक्शन. ये डिस्ट्रक्शन को पसंद करते हैं. जो लोग डिस्ट्रक्शन को पसंद करते हैं वेंडलिज्म बोलते हैं उसको. यस, किसी को मारना, हर्ट करना, वायलेंस करना, ये सब. वायलेंस भी एक सिम्टम है एडिक्टेड पर्सन का. वेंडलिज्म इज आल्सो ए सिम्टम. व्हाट इज वेंडलिज्म? लाइक डिस्ट्रक्शन. और एक डाउट में जैसे बताया अभी, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सबके नोट्स में ये जाना चाहिए. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मीनिंग तो सबको मालूम ही है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मीन्स व्हेन आवर बॉडीज ओन एंटीबॉडीज start destroying our own body cell, that is called autoimmunity. And in autoimmunity we are getting a list. एक आ रही है हाशीमोटोज डिसीज. हाँ, वो बच्चे कहीं पे देखे होंगे, एग्जाम में कोई ऑप्शन आया होगा हाशीमोटोज डिसीज. हाशीमोटोज डिसीज क्या है? इट इज कॉज ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की ऑटोइम्यून डिसीज है ये, थायराइड ग्लैंड की. if our own antibodies start destroying our own thyroid gland, that is Hashimoto's disease. Okay, Hashimoto's का मतलब समझ में आया आपको? It is a disease of autoimmune disease of thyroid gland. इसके अलावा जो है सोरियासिस बोल के भी आ सकते हैं आप. सोरियासिस, सोरियासिस पी साइलेंट. सोरियासिस मतलब स्किन, स्किन के ऊपर, पूरा बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर लीजन्स हो जाते हैं. स्किन स्टार्ट कमिंग आउट. स्किन है ना, थोड़ा थोड़ा करके निकलने लगती है पूरे बॉडी से. दैट इज सोरियासिस. एक ऑटोइम्यून डिसीज है. ऑटो इम्यूनिटी से जो डिसीजेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलेंगे. व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? व्हेन आवर ओन इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन बॉडी सेल, दैट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिसीजेस. उसमें एक लिस्ट बन रही है, हाशिमोटोस डिसीज. इसमें हमारे एंटीबॉडीज खुद थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेंगे. सोरियासिस में स्किन डिस्ट्रॉय करेंगे. ठीक है. और कौन सी? विटिलिगो है. विटिलिगो में क्या हो रहा है? आवर ओन एंटीबॉडीज स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स. मेलानिन, जो स्किन के अंदर मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. कुछ देखे ना आप, थोड़े लोग जो है कुछ एज के बाद, 30-40 ईयर्स की एज के बाद जो है स्किन के ऊपर रेड व्हाइट कलर के पैचेस शुरू हो जाते हैं. थोड़ा सा व्हाइट इधर बन गया, थोड़ा व्हाइट इधर 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 ऐसे. So that disease is vitiligo. और ये vitiligo क्या है एक्चुअली? This vitiligo is caused due to autoimmune disorder. autoimmune disorder से होने वाली बीमारी है. और जो है ना, दो तो याद रखना ही है. ये जो तीन है, हाशिमोटोस डिसीज, सोरियासिस, विटिलिगो, ये एक्स्ट्रा है, ये याद रखना. इसके अलावा दो तो हैं हमारे. रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, बुक में है. रूमेटॉइड अर्थराइटिस मतलब सीवियर काइंड ऑफ जॉइंट पेन. सीवियर, एक बहुत ही ज्यादा जो है सीवियर जॉइंट पेन होता है, दैट इज कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है. इसके अलावा और कौन सा है? मायस्थेनिया ग्रेविस भी याद रख लो. Myasthenia gravis means here what happens in myasthenia gravis? Neuromuscular junctions. याद रखो ना क्या हो रहा है ये डिसीजेस में. हाशिमोटोस डिसीज में थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉयड, सोरियासिस में स्किन डिस्ट्रॉयड, विटिलिगो व्हाइट पैचेस ऑन स्किन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सीवियर जॉइंट पेन, मायस्थेनिया ग्रेविस NMJ,
NMJ are destroyed. Neuromuscular junctions are destroyed. As a result, the person goes in paralysis attack. अगर न्यूरॉन और मसल का जंक्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पर्सन क्या करेगा? ही कैनॉट मूव हिज हैंड और लेग, ही गेट्स पैरालिटिक अटैक. इसको मायस्थेनिया ग्रेविस बोल रहे हैं. जिम्नोस्पर्म डज नॉट, यहां पे आया है, जिम्नोस्पर्म डज नॉट हैव फ्लावर, हाउ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन इट. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं. देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में रहना चाहिए. ओके, डाउट्स क्या होते हैं मालूम है? जब भी डाउट्स चलता है ना क्लास में, डाउट वो एक ऐसी चीज है, कॉमन फैक्टर रहता. वो बायोलॉजी में तो रहता. जो चीज एक बच्चे को नहीं समझ नहीं आ रही है, आई थिंक मैक्सिमम 80% बच्चों को वही चीज नहीं समझने आती रहती है. नेग्लेक्ट नहीं करना वो चीज, नोट करना हम. हाँ, तो यहां पे एक डाउट क्या चल रहा था? जिम्नोस्पर्म्स क्रिप्टोगैम्स बोल के लिख लेना. क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. जिसको फ्लावर नहीं है उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और जिसको फ्लावर है उनको हम क्या बोलने वाले हैं? फेनेरोगैम्स. फेनेरोगैम्स, फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फेनेरोगैम्स के एग्जांपल बताइए, क्या बोलेंगे आप? हाँ, फेनेरोगैम्स के. ओके, इसके भी एग्जांपल बता दो क्रिप्टोगैम्स के. अलगे, ब्रियोफाइट, they are cryptogams not having flower. Algae. Phanerogams having flower. Example for this phanerogam is gymnosperms. सही सुन रहे हैं आप? Gymnosperms are flowering plant. Angiosperms are also flowering plant. सही सुन रहे हैं? Gymnosperms are the first phanerogams on earth. Of course, they are not having well decorated, attractive flowers, but they are having structures equivalent to flower, just like microsporophyll. Microsporophyll होता है एंजियोस्पर्म में. What is microsporophyll? Microsporophyll is equal to stamen. बताया हूं मैं, माइक्रोस्पोरोफिल इज इक्वल टू स्टेमेन. हाँ, अब जो बच्चों को डाउट है स्टेमेन, जो बच्चों को डाउट है जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते, जरा जाना फर्स्ट ईयर की बुक ओपन करना, प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म में जाना, लिखा हो रहा था माइक्रोस्पोरोफिल इज प्रेजेंट. इवन पॉलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस. पॉलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म्स. अट्रैक्टिव नहीं रहते फ्लावर, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट फ्लावरिंग फेनेरोगैम कैटेगरी में रखे हैं उनको. नेक्स्ट, और कोई डाउट है? Cancer cells are easily damaged by radiation. Cancer cells are easily damaged by radiation. Why? Cancer cells are easily damaged by radiations. जरा सा अगर हम रेडिएशन वगैरह डालेंगे कैंसर सेल के ऊपर तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे हम रेडियोथेरेपी करते हैं, इन केस ऑफ रेडियो
थेरापी या रेडियोग्राफी? रेडियो थेरापी। अच्छा, अगर हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट तो रेडियोथेरापी, अगर डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम रेडिएशन तो रेडियोग्राफी। दो अलग अलग वर्ड हैं बुक में। डिटेक्शन ऑफ कैंसर बाय यूजिंग रेडिएशंस, रेडियोग्राफी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूजिंग रेडिएशन, रेडियोथेरापी। तो यहां पे लिखा हुआ है कैंसर सेल आर इजीली डैमेज बाय रेडिएशन इन केस ऑफ रेडियोथेरापी। व्हाई? because they are immature continuously dividing cells, immature continuously dividing cells। इतना फास्ट डिवाइड करेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। करेक्ट है? डिवाइडिंग सेल्स कंट्रोल वे में डिवाइड करना चाहिए। यहां पे कैंसर सेल इमैच्योर है, मैच्योर होते ही नहीं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द रेडिएशन इजीली हार्म देम। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन से एंटीबॉडीज बनते हैं? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कौन से एंटीबॉडी? हाँ, जब भी कभी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा व्हेन एंटीजन एंटर फॉर द फर्स्ट टाइम in a person's body, his body system show primary immune response of low intensity or high intensity. Low intensity, that is called primary immune response, involve production of antibody. Which antibody? IgM बोलना चाहिए। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में IgM बनते हैं, याद रखना। What is एंटीवैनिन? एंटीवैनिन क्या है? एंटीवैनिन एंटीवैनिन क्या होता है? नहीं मालूम? वर्ड नहीं सुने कभी भी? एंटीवैनिन, एंटीवैनिन आर प्री फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक बाइट, यानी तो आप रेडीमेड भी बोल सकते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट व्हाट? स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेंगे उनको हम एंटीवैनिन बोलने वाले हैं। एंटीवैनिन। ready-made antibodies against snake bite। कल एक बच्चे पूछे, डाउट आया था उनको, ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स क्या होते हैं? स्टाइमुलेंट क्या होते हैं? डिप्रेसेंट क्या होते हैं? ये सब के एग्जाम्पल और बताना है आपको। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब विच हेल्प्स इन सूथिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन, रिलैक्सेशन, विच हेल्प्स इन रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन। अगर कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा टेंशन में है वो, तो ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, एक ड्रग दी जाती है ट्रैंक्विलाइजर। सूथिंग इफेक्ट, थोड़ा सा ब्रेन है ना रिलैक्स हो जाता है। सूथिंग, यस, डबल ओ THING, सूथिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन। अब एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो बेंजोडायस्पाइन, एम्फेटामाइन, बारब्यूट्रेट्स, ठीक है? क्लियर है?
ट्रंकिलाइजर्स। अच्छा ये बोलो, बाब, बाब क्या था? बाब क्या था बोलो? बी फॉर बारब्यूटरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडायास्पाइन, दीज थ्री ड्रग्स। क्या लिखा है बुक में? These drugs are given for a patient who is under depression and insomnia। मतलब जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है और जिसको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया है, उसके लिए एक ड्रग दी जाती है बाब। और ये बाब लेने से क्या होता है? ट्रंकिलाइजर, नींद आ जाती है, थोड़ा सा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। समझ में आया? सूथिंग इफेक्ट ऑन ब्रेन। व्हाट इज एग्जांपल? बाब। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स भी ये जो वर्ड है, ये जो ड्रग है स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, ये खाते ही नींद आ जाएगी। सेडेटिव्स है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। लेकिन ये सूथिंग इफेक्ट के लिए नहीं है, ब्रेन को रिलैक्स नहीं करेगा, जस्ट नींद आ जाएगी। सेडेटिव्स बोल तो स्लीप इंड्यूसिंग। मार्फिन, मार्फिन है स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। स्टाइमुलेंट which act as activator of the body, one of the best common stimulant, common बोलो, कैफीन, कॉफी ले लो नींद चले जाएगी। कैफीन, कॉफी में होता है कैफीन, स्टाइमुलेंट है। डिप्रेसेंट, ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स मतलब जैसे हेरोइन है, ये पेशेंट को लेके जाएगी डिप्रेशन में। ओके, और कोई डाउट है? अच्छा, एनाल्जेसिक बोल के कहीं पे वर्ड मिल गया आपको। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है बोलो? पेन किलर है ये, पेन किलर, जस्ट पेन किल करने वाला, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक पेन किलर। सिफिलिस इज कॉज बाय विच पैथोजन? सिफिलिस, syphilis is caused by pathogen Treponema pallidum। ओके, Treponema pallidum बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, एक पर्सन है showing unpredictable moods, a person showing unpredictable moods, अनप्रिडिक्टेबल मूड्स मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कैसा है। अनप्रिडिक्टेबल मूड्स है, इमोशंस है, कभी क्वारलसम बिहेवियर है, कभी फाइटिंग कर रहा है। सो ही इज हैविंग विच डिसीज? अनप्रिडिक्टेबल मूड्स। इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब कोई पर्सन अनप्रिडिक्टेबल मूड, कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है, कभी फाइटिंग कर रहा है। सो अनप्रिडिक्टेबल मूड्स हैं, तो ये कौन सी डिसीज है? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Every time dosage of the drug increases, this is called, every time dosage of the drug increases, every time dosage of the drug increases, this is called tolerance। क्या बोलेंगे इसको? टॉलरेंस बोलेंगे।
नाउ नेक्स्ट, और क्या है डाउट यहां पर देखिए, PMNL जो वर्ड है, दिस PMNL रेफर्स टू ओनली एंड ओनली न्यूट्रोफिल के लिए है वर्ड ये. इट इज नॉट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ WBC. PMNL पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, बिकॉज द न्यूट्रोफिल्स आर हैविंग मेनी शेप्स ऑफ न्यूक्लियस, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, अलग अलग टाइप का न्यूक्लियस होता है, मल्टी लोब्ड. ठीक है. और एक डाउट आया है, पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस. रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस. If nucellus is remained even after seed maturation, एक्चुअली न्यूसेलस कहां है? ओव्यूल के अंदर होता है. न्यूसेलस ओव्यूल के अंदर होता है. इफ न्यूसेलस इज प्रेजेंट इवन आफ्टर द मैचुरेशन ऑफ सीड, वी कॉल इट पेरिस्पर्म. रेमेनेंट मतलब बच गया, रिमेन्ड पार्ट. रेमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. एग्जांपल इज, बेस्ट एग्जांपल इज ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर एक बेस्ट एग्जांपल है पेरिस्पर्म का. पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है, देखिए इट इज 2n. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म? एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड टिश्यू, पेरिस्पर्म इज डिप्लॉयड टिश्यू. एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉयड होता है. जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है. लेकिन पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. पेरिस्पर्म इज डिप्लॉयड. इज इंसुलिन इनटेक, हाँ अब ये क्वेश्चन है, सोच के बोले उन्होंने. अगर कोई पर्सन इंसुलिन ले रहा है तो क्या रिजेक्ट होता है इंसुलिन भी, जस्ट लाइक ग्राफ्ट रिजेक्शन? तो मैं आपको बोला ग्राफ्ट का मतलब क्या बोला था मैं आपको? ग्राफ्ट का मतलब होता है एनी टिश्यू और ऑर्गन, any tissue or organ which is transferred is called graft. Insulin is neither tissue nor organ. What is insulin? It's a chemical hormone. Chemical hormone. In all human, insulin is of same structure, 51 amino acids. Insulin is made up of 51 amino acids. सबके पास सेम है इंसुलिन. So insulin is not rejected. हाँ, अगर इंसुलिन दूसरे एनिमल्स का है, काउस का, पिग्स का है, दैट इंसुलिन मे कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी. लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन इंसुलिन अगर ट्रांसफर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इंसुलिन इज नाइदर टिश्यू नॉर ऑर्गन, सो देयर इज नो चांस ऑफ रिजेक्शन. अमानाइटा के बारे में पूछे हैं, क्या अमानाइटा भी हेलुसिनेशन करेगा? हेलुसिनेशन की लिस्ट क्या क्या है बोलो जरा आपके पास. हेलुसिनेशन बोलते ही लिस्ट आना आपके माइंड में. हेलुसिनेशन मतलब अट्रोपा बेलाडोना, धातुरा, हाई डोसेज ऑफ कोकेन. अब यहां पे एक डाउट आया हुआ है, LSD तो करेगा, LSD भी करेगा है ना. एक 4 की तो लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी थी, नोट्स में चेक कर लो, एक और ऐड कर लो. अमानाइटा, अमानाइटा जो है ये कहां लिखा हुआ है? अमानाइटा बोल तो फर्स्ट ईयर की बुक में जाना पड़ेगा हमारे को. फर्स्ट ईयर की बुक में अंडर द टॉपिक फंगाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहां लिखा होगा देयर आर सम पॉइजनस मशरूम, दे आर कॉल्ड टोडस्टूल्स. पॉइजनस मशरूम्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? टोड स्टूल्स. क्या है टोड स्टूल्स? पॉइजनस मशरूम. मशरूम तो खाते हैं ओके, लेकिन पॉइजनस मशरूम भी है. जैसे कि अमानाइटा इज ए पॉइजनस मशरूम एंड इट कॉजेस हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन होता है इससे. और कोई डाउट है? चले आज 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे. आज कितने राइट होते हैं देखेंगे आपके 10 क्वेश्चंस में से.
Number 1, life span of pollen grains of rosaceae. 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं देखेंगे. 10 क्वेश्चन दे देता हूं. germ pore made of germ pore made of cocaine receptor in body. कोकेन रेसेप्टर इन बॉडी. सोच सोच के दे रहा हूं जरा. सही है नहीं लेवल. टोटल वेरिएबल चेन इन एंटीबॉडी. इन एंटीबॉडी वेरिएबल चेन कितने रहते हैं एंटीबॉडी में. न्यूरोट्रांसमीटर affected by cocaine. Morphine obtained from which part? Obtained from which part? Dry scaly lesions with intense itching. Intense itching कौन से डिसीज में होता है ऐसे. पॉइंट नंबर 8. Tetanus can be prevented by point number 9. Typhoid Mary original name, her real name was whose count decreases in डेंगू. डेंगू डिसीज में किसका काउंट कम हो जाता है. हाँ इतने करना है देखिए अभी. सो लाइफ स्पैन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ रोजेसी. अब आंसर डिस्कस करना शुरू करेंगे हम. 1 मिनट में सोच लो, आंसर लिख दो आप पहले, उसके बाद देखेंगे कि कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए. रॉन्ग हुए तो रॉन्ग कर देना ईमानदारी से. सो लाइफ स्पैन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ रोजेसी आना चाहिए several months.
शायद आप 10 के 10 आंसर लिख दिए होंगे। जर्म पोर मेड ऑफ पैक्टोसेलुलोसिक। आप बोलेंगे वो कैसा? क्योंकि जर्मपोर मतलब द एरिया वेयर इंटाइन इज प्रेजेंट, एक्साइन इज एब्सेंट, इंटाइन इज प्रेजेंट। कोकेन रिसेप्टर बॉडी में कहां है बोल तो आप लिख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो रिसेप्टर थे, रिसेप्टर फॉर ओपियोइड ड्रग्स, रिसेप्टर फॉर ओपियोइड ड्रग्स एंड रिसेप्टर फॉर कोकेन के लिए भी रिसेप्टर है। हाँ हाँ, या नहीं तो आप और एक लिख सकते हैं नर्व जंक्शंस भी लिख सकते हैं, नर्व जंक्शंस। जंक्शंस है ना, इन बिटवीन द टू नर्व्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वहां पर। टोटल वेरिएबल चेन इन एंटीबॉडी 4, वेरिएबल रीजन 4 होते हैं, देखें वो कैसे? हाईवी चेन वेरिएबल, लाइट चेन वेरिएबल, है ना, टोटल 4 चेन है। वेरिएबल वेरिएबल यहां पर है, देखिए वेरिएबल, टोटल वेरिएबल रीजन्स कितने हैं? 4। न्यूरो ट्रांसमीटर अफेक्टेड बाय कोकेन, डोपामाइन आना चाहिए। मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट? लैटेक्स से निकालेंगे। ड्राई स्केली लीजन विथ इंटेंस ईचिंग, राउंड वर्म, रिंग वर्म? राउंड वर्म नहीं, रिंग वर्म है, राउंड वर्म नहीं होता। टिटेनस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दो आंसर आ सकते हैं इसमें, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज भी ले सकते हैं आप इसमें, या नहीं तो एक वैक्सीन है डीपीटी वैक्सीन भी ले सकते हैं। डीपीटी इज आल्सो करेक्ट आंसर। टाइफॉइड मैरी का रियल नेम क्या था? मैरी मेलॉन, मैरी मेलॉन हर रियल नेम। Whose count decreases in dengue disease? Platelet count decreases in dengue disease. काउंट करो, लिखो कितने मार्क्स हुए, पूरे राइट हुए, नो मिस्टेक, 8। आप भी कमेंट करो कितने आए मार्क्स आपके। 8 मिस्टेक्स होना, 9 मिस्टेक्स होना, तो ये चीजों को पॉजिटिव लो, आप पॉजिटिव लो। आपका मिस्टेक हुआ ना, इसको पॉजिटिव लेना, एंड यू शुड बी रेडी फॉर वन मोर राउंड ऑफ रिवीजन। समझे? वन मोर राउंड ऑफ रिवीजन के लिए रेडी रहना चाहिए, पॉजिटिवली लेके। मेरा एक रॉन्ग हुआ, 2 रॉन्ग हुए, 3 रॉन्ग हुए, यू शुड बी रेडी फॉर अगेन वन मोर राउंड ऑफ रिवीजन। समझे? पॉजिटिवली पढ़ेंगे तो जरूर जो है आप सक्सेस हो जाएंगे। पॉजिटिव, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए, आप अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए बिल्कुल, और अपने दोस्तों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ये जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आपको है ना जरूर आगे लेके जाएगा। अगर आप नेगेटिव रखते हैं सबके बारे में तो आपका कभी अच्छा तो हो नहीं सकता, ये प्रूव्ड है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के बारे में तो आपका तो अच्छा नहीं हो सकता, सबसे पहले आपका खराब होता। समझ गए? तो इसलिए जो है पॉजिटिव सोचो, और आपके 1-2 रॉन्ग हुए पॉजिटिवली, और एक बार रेडी रहो। नीट स्कोर क्या है मालूम है? जस्ट पेशेंस है। जो बच्चे ज्यादा सब्र रखते हैं, जो और एक रिवीजन के लिए रेडी रहते हैं, उनके मार्क्स बढ़ते हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही उनका आईक्यू बहुत हाई लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, बट वन थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीपल एंड द रैंकर्स। क्या बोलते हो? रैंकर्स है ना, उनके पास पेशेंस ज्यादा रहता, दे आर रेडी फॉर 10 टाइम रिवीजन। या हमारी हालत ऐसी है, एक बार पढ़ेंगे तो हम बोल रहे हैं कि हमारे टॉप आना मार्क्स, और अगर मार्क्स गलती से कम आ गए तो पढ़ना छोड़ देते हम। कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात और एडवाइस कर दे रहा हूं मैं, कौन से भी सब्जेक्ट को आप नेग्लेक्ट मत करो।
So give importance to all the three subjects. Whatever may be your score, you may be scoring very very less marks in any one of the subject, फिर भी उसको पढ़ना. समझ गए? वही है सक्सेस का राज. छोड़ेंगे तो फंस जाएंगे. कौन सा भी सब्जेक्ट को आप ड्रॉप मत करो. ओके, कम स्कोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कम स्कोर करो, टॉपर नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम एक गवर्नमेंट सीट सिक्योर होना चाहिए हमारी. टॉपर नहीं बने तो कम से कम सिक्योर तो रहना, सेफ जोन में तो रहना, बैलेंस तो रहना हमारे पास. ओके, तो आफ्टरनून में हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनेशन टॉपिक. थैंक यू.